परमेश्वर आपकी हर घटी को पूरा He करेगा। will meet all of your needs. परमेश्वर ने सेवकाई में हमारी हर घटी को पूरा किया। And we witness that in this ministry, He meet all of your needs. कितने लोग हैं जिनकी घटियां पूरी हुई है? How many of you who are saying that they are all needs प्रभु ने are met? आपको कुछ से कुछ बना दिया, Lord changes your situation. कुछ से कुछ बना दिया। They change your situation. कितने लोग हैं यहाँ पर जिनकी लाइफ में प्रभु ने काम किए? How many of you are saying that God worked in your एक life? हालेलुया बोल दो परमेश्वर के लिए। Hallelujah! पौलुस कहता है वो तेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। Paul saying that He will meet all your needs. हम इस्राएलियों के जीवन को देखते हैं, उनकी हर एक घटी पूरी हुई। We are seeing the life of Israelites. Their all needs were met. और यहाँ पे परमेश्वर कहता है तेरी रोटी, तेरे वस्त्र, हर चीज की चिंता मैं करता हूँ। That don't worry about your food, your clothes. I am worrying all these things वो about कहता है you. मैं तेरे स्वास्थ्य की चिंता करता हूँ। I am worrying about your breath. कई बार हम डरते हैं, Sometimes we take fear. मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, Oh, I might not get heart attack. मुझे पैरालाइज ना हो Oh, जाए। I might not get paralyzed. लेकिन ऐसे कन्फेशन नहीं करना है। Don't do these kind of confessions. जब from भी your आप mouth. सुबह उठते हो, When you just wake up, परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कहो, lift up your hands from मैं लंबी जिंदगी जीऊंगा longevity is mine. क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। I will live for long because मुझे my God परमेश्वर is के with काम me. करने हैं। I will serve God. हालेलुया, ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। Hallelujah. अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करो। Don't worry about your breath. कई बार हम कहते हैं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। Oh, I just don't want to suffer from the heart. मुझे एक पास्टर की कहानी पता है। I want to tell you a story of a pastor. उस पास्टर के अंदर हमेशा ये डर रहता था कि मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, He always afraid of the heart attack. लेकिन वो यंग एज में हार्ट अटैक से ही मरा And था। he dies with the same thing in the young age. एक बहन को मैं जानता हूं जो कहती थी मुझे पैरालाइज ना हो I जाए, know a sister who was always afraid of paralyzed. उसकी डेथ पैरालाइज से ही हुई। She died because of paralysis. आपने कभी ऐसा नहीं सोचना। Please don't confess such things. परमेश्वर कहता है मैं तुझे अच्छी हेल्थ दूंगा, God saying, I will give you and I will bless you with मैं good तुझे health. अच्छा स्वास्थ्य दूंगा। I will give you good health. अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं रिसीव करता हूं। Lift up your hand and say, I receive. बोलो मैं रिसीव करता हूं। Say, I receive. मैं नेगेटिव चीजों को कैंसिल करता हूं। I cancel, I rebuke the negative things. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. भाई शमी मुझे एक बहन की टेस्टमनी बता रहे थे। My brother Shami was saying me a story of sister. 15 साल पहले मैं उस बहन को इंग्लैंड में मिला था I met that sister 15 years ago in the UK, in और England. उस समय उस बहन की किडनी खराब थी। And at that moment, she was suffering from the kidney damage. डॉक्टर ने बोला था बहन अब तू बच नहीं सकती है, तेरी किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। Doctor was advising her kidney transplant. और मैं बताना चाहता हूँ वो किडनी ठीक नहीं हुई, वो खराब होती गई। And that kidney were just getting into the worse and worse condition. उसकी किडनी सिर्फ 2% काम करती थी। Only 2% her kidney was working. उन्होंने यूके छोड़ा और दुबई में आके सेटल हो And गए। they moved to Dubai from UK. और अब क्या हुआ And what happened? कि वो बहुत ज्यादा डर गई। And she was so उसने afraid. सोचा अब मेरे मरने का समय आ गया है। She's saying, now it's my time to go. और जब दुबई में वहां पर पास्टर शमी गए हुए थे, And when Pastor Shami was in the Dubai and she met him, उन्होंने मुझे बताया कि अपोस्टल जी आप उनके लिए प्रार्थना करो। and Pastor Shami said, Apostle ji, please pray for that sister. मैंने उसके लिए प्रार्थना भी की And I pray for her. और पास्टर शमी ने उनको बोला, And Pastor Shami told her, उसने बोला सिस्टर हम आपको 15 साल पहले मिले थे, and he said, sister, we met you 15 years ago. आपकी किडनी टोटल खराब है, And at that time your kidneys were damaged. लेकिन 15 साल हो गए आप अभी भी जिंदा हैं। But still for the 15 years God has just remained you alive. परमेश्वर कहता है मैं तेरे स्वास्थ्य को सही रखूंगा। And God is saying, I will keep you, I will remain your health. दुनिया का सबसे बड़ा चर्च The biggest church of साउथ कोरिया में, in the South Korea, जिसके पास्टर का नाम है डेविड जोंगी चो, and the pastor is there, that David Chongi Cho, अभी वो प्रभु में सो गए and हैं। he is now slept in the God. आपको पता है 80 साल की उम्र में वो प्रभु के पास गए। And for the 80 years, he 80 went to God. साल की उम्र तक उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। For the age of 80 years, he was suffering from diabetes. 80 साल तक वो डायबिटीज थे, For the 80 years, he was suffering from the diabetes. लेकिन परमेश्वर ने डायबिटीज को कभी उनकी हेल्थ पर हैवी नहीं होने दी। But God never let the diabetes overcome his things. आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, No matter from which things you are suffering. लेकिन जब तक परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल करना है, But God, till the time God wants to use you, वो आपको कभी मरने नहीं He देगा। will not let you die. वो आपको जिंदा रखेगा He will keep you alive. और ब्लेस रखेगा। He will keep you blessed. आपकी ताली परमेश्वर के लिए ऊंची होनी चाहिए। Hallelujah. Your praise should be good for God. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah.
वो आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा। He will bless you with good health. हमेशा अपने लिए ये बोले, मैं स्वस्थ हूँ, Confess this thing that I am healthy. मैं ब्लेस्ड हूँ। I am blessed. कई लोग आपको पूछेंगे आपका हाल क्या है, Sometimes people say, how are you? ठीक ही यार, Oh, I am doing fine. बस चली जाती गड्डी। I am just running my life. कई लोगों को आप मिलेगा बस गोलियां गुड़ियां खा के कम करी जा रहे हैं। Some saying we are alive just because of the medicines. कई लोगों को आप पूछेंगे क्या हाल है, Sometimes you ask people, how are you? बस धक्का धुक्का लगा के काम चल रहा है। Oh, we are just passing a time. जिंदगी है, चलता रहता है। It's life. It's like that only. लेकिन जब आप परमेश्वर के लोगों को मिलोगे, And when you meet the people of God, भाई साहब आपका क्या हाल है, oh my brother, how are वो you? बोलेगा आई एम ब्लेस्ड इन They क्राइस्ट। say I am blessed in the name of Jesus. और जब आप ऐसा बोलते हैं, And when you say so, शैतान डरता है, and the devil trembles, सुपर नेचुरली परमेश्वर काम करता and है, supernaturally God works into your life. डिवाइन एनर्जी आपके जीवन में शुरू हो जाती है, Divine energy start coming into your और life, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाना शुरू हो and जाती है। negativity start going out from ताली your बजाएं life. परमेश्वर के लिए जोर से। Give praise to God. वो कहता है अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करो। Do not worry about your life, he says. वो कहता है जो बीमारियां मैंने मिस्रियों पर डाली मैं तुम पर नहीं डालूंगा। The sickness I just put on the Egyptians, I will not put those things on you. अगर आपकी किडनी में, हार्ट में, लीवर में, शरीर में कहीं पे भी बीमारी है, रोज उस पर हाथ रख के प्रार्थना करो। No matter from which disease you are suffering, from heart, from kidney, your liver, just place your hand and यीशु pray. मसीह ने कहा तुम हाथ रखोगे तो चंगे हो। And say, when you will keep your hand, you will get healing. अगर आपके सर पर बाल नहीं है, रोज हाथ रख के प्रार्थना करो, गंजे लोग जो हैं वो चंगे हो जाएंगे। Even you can get hair if you are bald. With पिछले दिनों में मैं एक खबर देख रहा था, And the recent day I was कोई भाई दवाई लगा रहा था, गंजे बोलते हैं वाल आ जाते हैं, दवाई लगा रहा था, a brother was applying a medicine, और कई लोगों की आंखें खराब हो गई। and people just got eyes damage because of मेरे that पास medicine. एक भाई आया, अपोस्टल जी मेरे बाल नहीं आते। A brother came to me say, I am suffering from the baldness. बोला मैं भी वहां पे दवाई लगाने जा रहा I हूँ। went there. I'm going there just for the medicine. मैंने बोला आंखें खराब हो जाएगी। And you are going to get hairs, but you will lose your eyes, my dear. उसने कहा मुझे फिर कोई तरीका बताइए। See, he told me that please give me another option. मैंने उसको अनॉइंटिंग ऑयल दिया, I just gave him anointing oil पूरी समर्थ के साथ प्रार्थना करके। with my prayer. मैंने बोला ऐसे हाथ लगा के जिग 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 लगाते रहना बस, I just said that apply this oil in your head. और बोलना हालेलुया, यीशु मसीह मरी हुई चीजों को जिंदा करता And है। you say Jesus can give life to the dead things. और उसने सच में ऐसा करना शुरू कर And दिया। he indeed start doing these things. 21 दिन के बाद वो मेरे पास आया, After 21 days he came back to बोला me. छोटे छोटे निकलने शुरू हो I गए। can see the earbuds upon my head, Apostle Ji. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. आपका आत्मिक जीवन ब्लेस होगा। Your spiritual life will be blessed. प्रभु हमारे भोजन की चिंता करता है, He's worrying for our food. स्वास्थ्य की चिंता करता He's है। worrying about her वो कहता है health. तेरी सारी घटियों को वो पूरा करेगा। He's saying, I will meet all your needs. अगली चीज है परमेश्वर तुम्हारे रोजगार को भी मुहैया करवाएगा। He will provide you a business. बोलो He will हालेलुया। provide- परमेश्वर तुम्हें रोजगार भी देगा। He will give you your daily course, your employment. परमेश्वर कहता है तू कभी भूखा नहीं सोएगा। You will never let sleep hungry. व्यवस्था विवरण 28 में कहता है तू पूंछ नहीं तू सर बनेगा। In the Deuteronomy 28, he's saying, you will become head, not the tail. वो कहता है मैं तुम्हें हर जगह पर विजय बनाऊंगा। I will make you victorious everywhere. तू जहां भी जाएगा तू जीत को देखेगा। Wherever you will step your feet, you will see परमेश्वर the कहता है victory. मैं तुम्हें कभी घटी नहीं आने दूंगा। I will never let you suffer from the lecture. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. वो कहता है अपने धन के अनुसार, With according to his riches. अपने धन के अनुसार। According to his riches. परमेश्वर का धन क्या है? What is the richest of the God? कितने लोगों को पता है How many of you know? परमेश्वर का धन क्या है? What is the richest of God? परमेश्वर का धन सिर्फ संसारिक चीजें नहीं, That is not all the worldly things. वो संसारिक चीजें देता है, He gives the worldly things. लेकिन उसके साथ साथ वो स्वर्गीय रिचेस भी, स्वर्गीय धन भी देता है। But with that, he also gives you the heavenly blessings. कितने लोगों ने स्वर्गीय धन देखा है? How many of you witness the heavenly things? हेवनली करेंसी कितने लोगों को पता है? How many of you know about the heavenly blessings? कई लोग इमेजिन करते होंगे कि वह डॉलर की तरह होगी। Sometimes you can imagine that it should be like dollar. शायद ऊपर मूसा की फोटो लगी होगी, या Like जीसस की फोटो लगी होगी। There should be an image of Moses or Jesus should be there. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं स्वर्गीय धन है, सबसे पहली चीज आपके पापों की क्षमा हो चुकी है। The sanctification of your sins
is the first currency you got from heaven. कितने लोगों को समझ आ रही है? How many of you receive? ये स्वर्गीय धन है। This is the richest of आपके heaven. पापों की क्षमा हो चुकी है। Your sins are being forgiven. पाप सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। Sins are the root of your every problem. बाइबल कहती है पाप जो है ये हर बुराई की प्रॉब्लम है। Bible says that sin is the root of every evil. मौत की प्रॉब्लम भी पाप ही है। Even the death has the root cause of sin. और हमारे लिए स्वर्गीय धन मिला है, वो है पाप की क्षमा। And we receive the richest of the heaven. आप That is the जितने forgiveness of भी sin. यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपके पापों की क्षमा हो चुकी All है। of you who are believing on Jesus, you receive the forgiveness of your sins. जैसे आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप सीधा यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। You are qualified to enter into the heaven to meet Jesus. क्योंकि आपके पाप माफ हो चुके हैं। Because your sins are forgiven. आपको बलिदान की जरूरत नहीं, You don't तपस्या need- की जरूरत नहीं, यात्रा की जरूरत नहीं, आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं, पानी में आग में जाने की जरूरत नहीं, आपको कोई प्रकार का संसारिक रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं, आपको कोई ऊपर नीचे पहाड़ों में, गुफाओं में, आग में, पानी में अपने शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं, आपको कीले ठोकने की जरूरत नहीं, आपको उल्टा सीधा लेट कर तपस्या करने की जरूरत नहीं, आपको दुनियावी तरीके से काम करने की जरूरत नहीं, आपको पशु की, भेड़ों की, बकरे की, बल्द की, एनिमल्स की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए यीशु मसीह बलिदान हो चुका है और उसके बलिदान से आपके पाप माफ हो चुके हैं। You do not give God any kind of sacrifice like the people of this world are giving. They are going anywhere. They're going upon the hills. They're going upon the pits. But you ought to do nothing just for your salvation, because Jesus gave his own life because of you. मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको स्वर्गीय धन मिला है। सबसे पहला आपको पापों की माफी मिल चुकी The है। richest of the heaven is the forgiveness of जोर your से sin. बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. क्या कोई इंसान आपके पाप माफ कर सकता है? Can any man can forgive your sins? जो डॉक्टर खुद बीमार है वो आपको चंगा कर सकता है? A sick doctor cannot heal you. जो खुद गंदा है वो आपको साफ कर सकता है? Muddy person cannot make you clean. जो खुद नशे करता है वो आपके नशे छुड़ा सकता A है? druggist person cannot give you the healing. लेकिन from the यीशु मसीह के अंदर वो क्षमता है, वो सामर्थ है, वो पवित्र है और उसने आपके पापों को माफ कर दिया है। Because only that Jesus have that ability. He can sanctify you. He can forgive your sins. दूसरा आपको अनुग्रह मिला है, ये भी स्वर्गीय धन है। And second, you receive mercy from the heaven. ग्रेस मिली, आपको अनुग्रह मिला You है। receive grace from the heaven. अनुग्रह है कि आपकी योग्यता से नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह से आप आशीष पाए हैं। That is not because of your ability. It's because of the grace of God you received the blessing. इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप बड़ी जॉब करते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप यहूदी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, आपका तपस्या बहुत ज्यादा, आपकी भक्ति, आपका कर्म, आपका धर्म बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप बचाए जाएंगे। पर नहीं, आपका धर्म, कर्म, आपके कर्म कांड आपको बड़ा होने के बाद भी आपके एफर्ट आपको बचा नहीं सके, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ, उस अनुग्रह से आप लोग बचाए गए हैं। It does not matter that what is your qualification, what you have, what you have achieved into this world. Just because of the Jesus, just because of his grace, you are sanctified. You got the salvation from the heaven. ये अनुग्रह स्वर्गीय धन है। This grace is the currency of heaven. मान लो आप कितने भी सामर्थी हैं, Just take it like, no matter how anointed आप you कितने भी धनी हैं, are, no matter how rich you are, आपके पास कितना भी नाम और पैसा है, might be possible that you have a big शायद name. आप यीशु मसीह के यहूदी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, Maybe you belongs to the Jews. आप बोर्न क्रिश्चियन हैं, You are born Christian. आप पैदाइशी मसीही हैं, You are born Christian. ये आपको नहीं बचा It सकता है। does not save you. आप इससे परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। You cannot go to the God with this आपके qualification. अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप खुदा के पास चले जाएं। You do not have that qualification that you go to God with yourself. मूसा खुदा के सामने गिर गया, Moses fell down वो before कहता God. है मैं तुझे देख नहीं Oh, सकता। he say, I cannot see you. यूहन्ना गिर गया, डैनियल गिर गया, वो कहता है मैं तुझे देख नहीं सकता। John fell down, Daniel fell down, he say, I cannot see you. लेकिन यीशु मसीह में हमें अनुग्रह मिला है। But we received grace from the Jesus. अब हम हयाव के साथ उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के पास जा But सकते with हैं। that confidence, we can go to the God.
सबसे पहले पापों की क्षमा, First we receive the forgiveness of sin. दूसरा स्वर्गीय धन है परमेश्वर का अनुग्रह। Second we receive the grace from Jesus. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. कई लोग कहते हैं सन्यासी बन जाओ, Sometimes people say that leave everything behind. अपना घर बार छोड़ दो। Leave everything, your house, your children, everything behind. कई लोग कहते हैं कि दुनिया से अलग हो जाओ, You just need to set yourself apart from the world. जंगलों में चले जाओ, You can go into the wilderness. भक्ति में बैठ जाओ, You can go into your all the divinations. हालेलुया हालेलुया करी जाओ। You can say hallelujah, hallelujah all the जब time. तक परमेश्वर का अनुग्रह आपको नहीं मिलेगा, Till the time you have not received the grace, आपके पास वो क्षमता ही नहीं कि आप खुदा के पास you जा सको। cannot possess that qualification that you can go to the God. ये स्वर्गीय धन है, That is the currency. ये Of किसी दुकान से नहीं मिलेगा, you cannot buy it from any shop. ये ऑनलाइन नहीं, गूगल पे नहीं मिलेगा, You cannot buy from Flipkart or Amazon. ये सिर्फ परमेश्वर से मिलता You है can only get this from और God. यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता And है। you can receive after the believing on the आपकी Jesus. ताली परमेश्वर के लिए ऊंची होनी चाहिए। Hallelujah. Your praise should be high for God. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. पौलुस कहता है स्वर्गीय धन के अनुसार। Paul saying according to the richest of the heaven. अगला स्वर्गीय धन है पवित्र आत्मा की समर्थ, Second, the power of the Holy Spirit. ये भी स्वर्गीय धन है। This is also a richest of heaven. एक धार्मिक व्यक्ति हमारे पास आया, A righteous person came to us. उसने कहा यार तुम्हारे यहाँ पे बड़े चमत्कार होते A हैं, Lord, he said that you were doing so much miracles here. बड़े रोगी तुम्हारे यहाँ पे ठीक होते हैं, Oh, a lot of person receive healing here. मेरे से 50,000 रुपए ले लो, ये शक्ति मुझे भी दे दो। And he said, just took 50,000 from me, give that grace to me. वो कहने लगा मुझे भी दे दो, He said, give this to me. मैं भी अपने धार्मिक स्थान में ये काम करना चाहता हूँ। I just want to do all these miracles. मैंने into my उसको own कहा place. पैसों से ये नहीं मिलेगा, You cannot buy it from your money. आपको पश्चाताप करना है, बपतिस्मा लेना है और ये पवित्र आत्मा की समर्थ आपको मुफ्त में मिलेगी। You have to repent, you have to be baptized, then you can receive this grace from the Holy Spirit. अगला स्वर्गीय धन है पवित्र आत्मा, The next richest of the heaven is the Holy Spirit. उसके बाद है अनंत जीवन। That eternal life. अनंत जीवन, Eternal life. या तो आप अनंत काल के लिए नरक में चले जाएंगे या अनंत काल के लिए स्वर्ग में चले Might be जाएंगे। possible that you are going heaven for your eternity and you might go to the hell for your लेकिन eternity. जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 कहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। And it is written in the Gospel of John 3:16, it is written that whosoever believes on God will receive eternal life in heaven. अपने हाथों को उठाएं, Lift up your hands. जितने लोग आज प्रभु की हुजूरी में हैं, The people who are feeling themselves in the मैं presence of घोषणा God. करता हूं आज से ये अनंत जीवन में प्रवेश करें। I proclaim that they may enter into the eternal life. सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।